Any sport event organized in India or abroad that is of interest to people in India has a question of a rights element. You know, the rights have to be acquired by the party who is going to broadcast it. So our first and a major challenge is how to get the broadcast rights of a particular event. So there, most of the events that are organized around the world, though we know who the organizers are and that they are interested in taking that event to a lot many people in India and abroad, but they still would want the money. And for that, television and radio and other media are the sources of getting them the money that they spend in organizing, or probably some of them may be eyeing profits also. So major thing that we have to do first when we embark on a coverage is to obtain rights of a particular event. For instance, if it is the Olympic Games or the Commonwealth Games, we have to first contact the organizers and ask them who has the rights and will you be able to give us the rights, and then they will quote a particular amount saying that this is the amount with which we can do business. So that is a major stumbling block when it comes to public service broadcasting, because normally major event organizers charge a huge sum. So, and as a public service broadcaster, we have to justify the coverage aspect, saying that something is being done in public interest, and therefore we need to invest this much money on this particular, covering this particular event, which features Indian players and their performances. Therefore, the major thing, I would say, major challenge for us is to obtain the broadcast rights. Now, once you've obtained the broadcast rights of a particular event, then comes the actual coverage and the deployment of your coverage team to the location or the venues where the event is being held. So for that, now you'll have to have a trained team, and normally most broadcast organizations these days have a trained coverage team, and they specialize in certain events, whether it is news or whether it is any particular discipline related thing. Like for instance, somebody would be an expert in cricket, and you certainly need to have the expertise because you need to learn about the game before you actually go and do the coverage, and which is what is lacking in many channels that we see on a day-to-day basis. They mispronounce names of common players are not uttered properly. This we see across the board, across all channels. But All India Radio has been very particular, not that we don't make mistakes, but right from the early days of commentaries on All India Radio, we've been very particular, and we have a system of getting in commentators from various parts of the country. Anybody who is interested in doing a commentary can approach the nearest All India Radio station and get himself or herself recorded during an event, and then the same recording is sent to us for screening, and we get an impartial committee including people from outside and players like Mr. Bhupinder and others to actually listen to the recording and point out if there is any flaw or grade the person accordingly. So we have a gradation system, and we choose commentators accordingly. Anyone who is interested in doing commentary can approach the local radio station, the closest radio station, All India Radio station next to them. So once you have the trained people with you, then you identify how you're going to dispatch the team, how many days you have to spend in the location to actually do the coverage, and then get the accreditations and whatever else is required for transporting your team. These are the basic things that are involved in actual coverage of a particular event. And then when you are there, you obviously have the technical issues connected with the coverage. That is, you have to see that if you have a live program, that your live spot, your commentary position, everything is in place, which is all done
well before the actual event takes place. So once you have the commentary position in place, the accreditations in place, then you can access the venue and get your commentators, whoever you're taking in. And if you are doing a bilingual commentary, which normally we do in All India Radio, we have it in Hindi and English all across India. And anyone who has a problem with listening to Hindi or understanding Hindi has an option of getting an English, kind of fill up soon after the Hindi bit is done. So that is the current pattern of our commentaries, live commentaries, whatever we do. Now, besides live commentary, we also have regular programs across India, across the hundreds of stations that we have for local events, because there is this question of whether local sports will be, something of interest to audiences. I wouldn't be able to give, yes or no answer here, because, for instance, if you are at home and if you have the option of going to the venue to actually witness an event, why would you want to listen to a commentary at home? So those things you need to consider when you talk about local events. But local events, as in nowadays, if cities are growing, therefore, if you are talking about local events, there are probably people who don't have access or who cannot come to that particular venue or who are at home. And then it is probably beneficial for those people when we do those events. So local events have a relevance now. Basically, I think radio is coming to a stage where there is more narrowcasting than broadcasting, and we are targeting specific listener groups, and those groups are benefiting by our specific targeted interventions. I thank the organizers, Rukmini Vemrajuji, Archana Kapoor, Pinky Chandran, and all the others in UNESCO for the opportunity for me to, express my thoughts here. Thank you, Shiva. You spoke about the interest in sports. तो मुझे लगता है दुनिया भर में हम जानते हैं कि लोगों की जो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होती है, सबकी, हमने बच्चों की बात मैंने की थी कि बच्चे बहुत शौक़ रखते थे, लेकिन बड़े भी कम नहीं रखते. और कई बार ये होता है कि जो हम खेलों की प्रतियोगिताओं में, ख़ासतौर से आप देखें कि अगर वो नेशनल हो रहा है तो वहाँ राज्य, या आजकल अगर आप IPL जैसे है या दूसरी लीग चल रही हैं तो क्लब्स होते हैं, उनके साथ लोग एसोसिएट करते हैं. कलकत्ता में मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की जो राइवलरी है फुटबॉल की, वो लीजेंडरी है. हर जो है जब वो इकट्ठा होती है खेलने के लिए मैदान में, ओलंपिक्स हों, एशियन गेम्स हों, कॉमनवेल्थ गेम्स हों, या अपने देश में जब खेल होते हैं, राष्ट्रीय खेल होते हैं, सो वी सी दैट दे ऑल कॉम्पीट अगेंस्ट ईच अदर. हर एक दूसरे को हराना चाहता है, पर उसके बाद वो एक बिरादरी होती है, खेलों की बिरादरी. जैसे कि यहाँ हमारी ये बिरादरी है, या तो रेडियो में काम करने वालों की, या रेडियो में दिलचस्प रेडियो एंथुसियस्ट की बिरादरी है. सो उस रूप में मैं समझता हूँ कि एक चीज़ है. इन्होंने बहुत अच्छी तरह आपको बताया कि आजकल कवरेज जो है, खासतौर से लाइव स्पोर्ट्स कवरेज जो है, वो पहले जो चीज़ें होती थी. आई विल जस्ट लाइक टू टेल यू वन थिंग. छतरपुर, इन्होंने कहा कमेंट्री की बात की और बताया कैसे आप किसी भी जगह देश में हो, यू कैन ऑलवेज go to the nearest AR station, submit an application, get yourself recorded and send that recording to Delhi for being screened in that particular sports discipline. Adding to what he said, Hindi और English के अलावा जो देश की दूसरी भाषाएं हैं वहाँ भी स्पोर्ट्स में कमेंट्री होती है. I still remember I was the sports in charge at that time. The World Cup which we won in 2011, उसमें लास्ट में सडनली ये डिमांड आई कि मराठी में भी करना है. और हमारे पास स्पोर्ट्स के, as he has so elaborately explained, the rights, so the rights also include कि आप किस लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट करेंगे. So we had the rights of Hindi and English only, but that was a last moment thing, SOS thing, and then we went to ICC and said कि please मराठी में कर दीजिए, and happily Mr. Sharad Pawar was the president of ICC at that time. So we got the permission, and then we could do the commentary in Marathi as well. So and in Bengal, the Bengali commentary is very very big, and so it is in other parts of the country as well. तो मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प होती हैं सारी चीज़ें. Now the another dimension which has come, besides All India Radio doing it and other stations doing it, somebody was saying that very creatively the private stations put in, वो किस तरह करते हैं, वो मॉक जैसे एडवर्टाइजिंग होती है आजकल, बैक पाइपर सोडा, उस तरह की चीज़ होती है कि वो सहवाग पाजी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने देखिए इतने रन बना लिए उन्होंने भी. तो बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और फिर उसके बाद, लेकिन बिकॉज दे आर नॉट
as yet allowed to do live commentary. Sports coverage anybody can do, or any radio station can do, and they do it also. Now I shall request वर्षा छाबड़िया जी. वर्षा छाबड़िया जी ने मुझे बताया, इनका सलाम नमस्ते नाम का जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है वो आप में से बहुत लोगों ने सुना है, नोएडा में ये वहाँ काम करती हैं. और साथ साथ इन्होंने बताया कि इन्होंने खेलों को लेकर के कम्युनिटी रेडियो में बहुत सी इवेंट्स, बहुत सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं अपने आसपास की. जिस कम्युनिटी को आप सर्व कर रहे हैं उस कम्युनिटी की जितनी भी नीड्स हैं, जितने एस्पिरेशंस हैं, उन्हें आप फुलफिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप काम करती हैं. और उन्होंने बताया कि ये यंग स्टार्स जो इनके इलाके के हैं उनको मौका देते हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं. तो मुझे लगता है कि अब जो एक तीसरा जो आयाम है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का, हमने चर्चा की कि हमारे यहाँ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, हमारे पास कमर्शियल प्राइवेट रेडियो स्टेशंस हैं और उसके साथ साथ हमारे पास कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हैं. तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में, सामुदायिक रेडियो में क्या खेलों में हो रहा है, वर्षा जी बताएंगे. Okay. Firstly, I was really nervous. I was asking Shiva sir, can I sit on the other sofa? All radio stalwarts here. So a big radio hello to everybody, all the radio stalwarts, all radio personalities, all radio lovers. As we all feel, I think, I have just written 4 lines. I think ये अच्छी तरह से describe कर सकता है कि रेडियो किस तरह से ज़िंदगी का हिस्सा बनता है. Radio is a push when you are still, and radio is a medicine when you are ill. Radio gives you a smile when you are sad, and it gives you a laughter when you are glad. तो आपके हर जज्बात के साथ, हर दिन में, हर पल आपके साथ रेडियो कहाँ कनेक्ट कर सकता है, कहाँ कुछ मैजिक क्रिएट कर सकता है. जब तक आप रेडियो की फैमिली का हिस्सा नहीं बनेंगे या आप रेडियो को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, शायद उसका पता नहीं चलेगा. और इसी तरह से होता है कि जो रेडियो लवर्स हैं सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन मेरी तरह हर दिन वो रेडियो लर्न ही करते. तो आई थिंक दिस स्टेज इज़ एक्चुअली गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर अबाउट रेडियो, बट देन इट्स अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू शेयर कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस जो चैलेंजिंग तो हैं ही, लेकिन उनका कनेक्ट कितना ज़्यादा मैजिकल हो सकता है, आपको लास्ट माइल तक पहुंचाने का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कॉर्ड बन सकता है लोकल स्पोर्ट्स टैलेंट को ले आने का. तो अगर, क्योंकि हम लोग नॉस्टैल्जिक होकर कुछ पिछले पन्नों की बात कर रहे थे कि खेल और रेडियो का क्या रिश्ता रहा है, मेरे हिसाब से जब टीवी या पेपर बहुत ज़्यादा रीच की नहीं पाए जाते थे, रूरल इंडिया की अगर आप बात करें, तो खेल ज़िंदगी और भारत के लोग, इन सबको जोड़ने में सबसे अहम कड़ी रही है हमेशा रेडियो की. तो वहाँ भी मुझे लगता है, आई हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग सम लाइन्स वेयर एवर आई गो, आई हैव अ पेपर. तो मुझे हमारा एक जो खिलाड़ी लाजवाब रेडियो प्रोग्राम है उसमें भी हम लोग ऐसा ही कहते हैं कि खेलते हैं खिलाड़ी मैदान पर, निगाहें होती हैं आसमान पर, जिया है अगर भारत ने खेलों को तो वो है सिर्फ रेडियो पर. तो रेडियो के साथ वो मिल्खा सिंह जी की दौड़ हो, यहाँ जहाँ पर आपके टीवी नहीं है या कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लोकल स्पोर्ट्स, इमेजिन व्हेन धोनी वाज नो धोनी. सो हर गली में एक सुपरस्टार है और हर गली में खिलाड़ी है और हर खिलाड़ी के साथ एक शानदार कहानी है. जब उस कहानी को रेडियो के ज़रिए पॉपुलराइज किया जाता है तभी वो एक चैनलाइज होकर आता है और सारा समूह और सारे समुदाय और सारे लोग जुड़कर ये भी समझते हैं कि इन खिलाड़ियों को एक बड़ा दर्जा भी दिया जाना चाहिए. तो आई जस्ट ब्रीफली शेयर कि जैसा मैंने बताया कि हर दिन की कोशिश होती है रेडियो में और हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन में भी. हमारा जो रेडियो स्टेशन है सलाम नमस्ते, वो नोएडा में कार्यरत है और हमने अपनी कम्युनिटी में, समुदाय में देखा कि स्पोर्ट्स टैलेंट काफ़ी है. यहाँ से एक बहुत बड़ा एग्जांपल बताऊंगी. परविंदर अवाना जी का नाम सभी जानते हैं. ये नोएडा के ही आसपास हरोला गांव से जाने जाते हैं, वहीं के रहने वाले हैं और ये एकदम से ही चर्चा में तब आए थे जब आईपीएल में इनका सिलेक्शन हुआ था. तो उनका पूरा परिवार, मतलब हमने जब बातचीत के लिए, हमारे लिए, हमारे समुदाय के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. तो हमारे समुदाय में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पीपल हैं जो कि इन्हें एज काउंसलर ट्रेन करने के लिए मदद करते हैं. It was absolutely fascinating listening to वर्षा. भूपेंद्र जी हमारे साथ हैं. मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा अपने बारे में. आई एम इन ONGC राइट नाउ और आई एम मैनेजर HR देयर एंड गेम्स कोऑर्डिनेटर एथलेटिक्स. ONGC is a very big promoter of sports in the country. We have 17 regular teams. In 17 teams, we are giving employment to the athletes, cricketers, hockey players, volleyball, basketball, and chess, billiards, snooker. All the big names of the country are in ONGC right now. The top list. We have one Rajiv Gandhi Khel Ratna, 2 Padam Shris, 34 Arjun Awards, and in 23 sports, we are giving a scholarship to the budding talent. That is, I think, which is a very good and very big initiative by the ONGC top management. In 23 sports, around 250 scholarship athletes we have.
So the program is same online with this Khelo India. Prime Minister has started this year only, and ONGC has started in 2003 this program, this Khelo India. Now I come to the point, that is sports and रेडियो. तो रेडियो का स्पोर्ट्स के और खिलाड़ियों के लिए एक अपना अलग ही महत्व है. सूर्य सर, जैसे कि हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं, कई दफ़े आपने कहा मैं लॉन्ग स्प्रिंट से हूँ, तो लॉन्ग स्प्रिंट्स में 400 मीटर में ट्रेनिंग के लिए ना बड़ा लंबा जब ऑफ सीजन सेशन चलता है तो हमें कई सेशन तो 20 किलोमीटर रनिंग कंटिन्यूस के करने पड़ते हैं. तो 20 किलोमीटर कंटिन्यूस दौड़ना तो बड़ी परेशानी वाली सी बात है. तो उसमें उस टाइम रेडियो हमारे लिए बहुत ही फायदे का एक बिजनेस है. साथ में अपना FM रेडियो लगाओ और दौड़ते रहो फिर. तो हाँ, उससे आपको जो है ना पल्स रेट को नीचे लाने में भी फायदा मिलता है. अदरवाइज तो ये पल्स रेट ऊपर जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा. तो रेडियो बहुत ही, और अभी जैसे मैं गेम छोड़ दिया, मैं फरीदाबाद से रोजाना दिल्ली आता हूँ ऑफिस के लिए, तो मेरे पास म्यूजिक के लिए मतलब ना कोई मैं कोई पेन ड्राइव रखता हूँ ना CD रखता हूँ, जस्ट ओनली रेडियो, FM रेडियो. जस्ट उसको सुनो, गेट रिलैक्स. कहाँ जाम लग रहा है, कहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको, कितना खेल चल रहा है, क्या चल रहा है, सारा अपडेट्स मिल जाएगा. और अभी मैडम ने कहा था मैजिक ऑफ द कमेंट्री. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैजिक ऑफ द कमेंट्री का. अभी की एक क्रिकेट सीरीज चली हुई है साउथ अफ्रीका इंडिया की. तो घर में जो है मैं था, तो माय फादर ही इज़ अराउंड 70. तो उनके कमरे से जैसे मैच की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे थोड़ा सा अलग सी लगी. मैं ये कुछ मैच नहीं कर रहा कुछ आपस में कुछ चीज़ें. तो मैं उनके कमरे में जाके देखा तो टेलीविजन पे मैच चला हुआ है और टेलीविजन की आवाज़ म्यूट है और ही इज़ लिसनिंग द रेडियो कमेंट्री. दिस इज़ द रेडियो. दिस इज़ द रेडियो. तो रेडियो का जो मैजिक है कमेंट्री का, वो अपने आप में एक अलग ही है और उसका कोई जवाब नहीं है. तो रेडियो का स्पोर्ट्स में तो एक बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं संबंध है स्पोर्ट्स के साथ. और आगे आने वाले टाइम में ऑल इंडिया रेडियो और जब भी जितना भी रेडियोज़ हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉस्टलैंड गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया. एंड देन अगस्त में हमारे एशियन गेम्स होंगे इंडोनेशिया में. तो उसमें आप जो है लाइव कवरेज जो है कोशिश कीजिए कि लाइव कवरेज आप उसमें दे सकें, क्योंकि अभी ज़्यादातर लोग जो है खासकर हम दिल्ली NCR वाले, हम अपने दिन का आधा टाइम तो रोड पे ही होते हैं. तो उसमें हम टेलीविजन तो देख नहीं सकते. तो रेडियो से ही हमें पता चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लाइव कवरेज वहाँ पे देंगे. और जैसे कि आपने एथलेटिक्स में कहा, एथलेटिक्स तो एक आपके लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब है. एथलेटिक्स में अगर मैं जो आपकी कमेंट्री मैंने सुनी आप लोगों की 2012 ओलंपिक्स की, तो मैं कहता हूँ अगर आपका कमेंट्री का स्पीड और उसेन बोल्ट का देखा जाए तो मुझे लग रहा है कहीं आप ना जीत जाएं. क्योंकि जिस स्पीड से आप लोगों को कमेंट्री उसमें करनी है वो एक अलग ही, और वही एक जादू है रेडियो का. वो उसमें आप लोगों को मैं थैंक्स भी कहूँगा कि आप यू आर प्रमोटिंग दी एथलेटिक्स. और मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि आने वाले सारे इसमें एथलेटिक्स के सारे जो इवेंट्स हैं आप उसको लाइव कवरेज दें. अभी जैसे कि देश के अंदर एक टू कीप आवर सेल्फ फिट एक प्रोग्राम चला हुआ है. हर सिटी में आप देखोगे मैराथन्स होती हैं. मुंबई मैराथन, दिल्ली मैराथन, अभी 18 को गुड़गांव में एक मैराथन होने जा रही है. तो हर शहर में मैराथन्स हो रही हैं और उनका रेडियो के ऊपर इतना ज़्यादा एक वो प्रचार किया जा रहा है. तो वो दैट्स गुड, क्योंकि आज की डेट में फिजिकल फिट रखने के लिए अपने आप को एथलेटिक्स से अच्छा तो कुछ है ही नहीं. तो एथलेटिक्स में अगर आप एथलेटिक्स से दोस्ती रखोगे तो डॉक्टर तिरहान और इनसे दोस्ती बनेगी नहीं कभी भी. तो ये बेस्ट वे है और इसमें रेडियो बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहा है. एंड आई थैंक्स यूनेस्को एंड ऑल इंडिया रेडियो टू गिव मी अ चांस टू स्पीक हियर. थैंक यू वेरी मच. मुझे लगा कि हमारा वो जो पल था लंदन का वो सार्थक हो गया जब आपने कहा कि आप कमेंट्री आपकी बहुत अच्छा लगा. वंडरफुल भूपेंद्र जी आपको सुन करके. नमस्कार. कहते हैं कि अगर रेडियो की कवरेज की बात करें कमेंट्री में भी और वैसे भी, दुनिया में सूर्य के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा कवरेज देता है तो वो है रेडियो. दुनिया में दूसरे नंबर पर रेडियो है. जितना सूर्य कवर करता है इस पृथ्वी को, उससे सेकंड नंबर पर रेडियो करना चाहता है. मैं हिस्ट्री का लेक्चरर लग गया था, अच्छा वाला, लेकिन रेडियो की कमेंट्री का क्लियर था. 1978, 79, 75 में सरदार जसदेव सिंह जी, सुशील जोशी,
रावी चतुर्वेदी, नरोत्तम पुरी, मुरली मनोहर मंजूरियन सबको सुनकर रेडियो में आने के लिए मैंने मन किया और रेडियो में आ गया कमेंटेटर बनने के लिए। आई डिड माई फर्स्ट लाइव कमेंट्री इन 1984। हॉकी की कमेंट्रीज मैंने शुरू किया और पहली कमेंट्री जो थी वो मचान बना के हमने करी, सेंटर में मचान थी, लेकिन उसके ऊपर जब अपना सामान लेके इंजीनियर्स उस वक्त भारी भारी बक्से होते थे लेके चढ़े तो 2 घंटे पहले वो मचान टूट गई। और क्या किया जाए, फिर उस वक्त वहां पर लाके सेंटर में एक ट्रक खड़ा किया गया, उसका मुंह मैदान की तरफ था और ऊपर डाले में जो मजदूर बैठते हैं वहां बैठकर हमने पहली कमेंट्री की। और उसके बाद लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान से 5 बार मुझे लाइव कमेंट्री करने का मौका मिला। तो आपको कमेंट्री का ये फील्ड, रेडियो का ये फील्ड कहां कहां तक पहुंचा सकता है। जब आप कमेंट्री करते हैं, पिच के ऊपर बैठे होते हैं, बॉल स्विंग होती दिखाई दे रही है, सब कुछ आपके आंखों के सामने होता है, बहुत अच्छा लगता है। ये रेडियो की ही विधा है। अगर आप कमेंटेटर बनना चाहते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, कमेंटेटर बन सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा नौकरी करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि शिव कुमार ने कहा कि आप उसे अप्रूवल लिस्ट में आ जाइए और कमेंट्री कर सकते हैं। शिव कुमार से पहले मैं रेडियो का इंचार्ज था, लगभग 16-17 बार विदेश गया हूँ और कमेंट्री के चक्कर में। वीरेंद्र सहवाग ने जब मुल्तान में ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी तब 300 रन पूरे उन्होंने मेरी कमेंट्री में सिक्सर मार के किया। बजा दीजिए तालियां ना। सकला मुश्ताक को लगाया और मैंने वीरेंद्र सहवाग से कहा कि आप तो जब 200 के आसपास थे, आपने 8 रन बनाने के लिए 28 गेंदें खेली और आप भारत के पहले ट्रिपल सेंचुरी खिलाड़ी बनने वाले थे, तो आपने सिक्सर मार के उठाया। कहना आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया कंग साहब। मुझे लगा कि जब मैं दोहरे शतक के पास इतने टेंशन में आ गया हूँ, 8 रन के लिए मैंने 28 गेंदें खेली है, तो ट्रिपल में तो भैया कुछ भी हो सकता है। तो मैंने हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान जी बोलते हैं, हनुमान जी का नाम लिया, इतने में सकला मुश्ताक को लगा दिया गया। मैंने कहा ये ठीक हो गया। पहली गेंद को मैंने सुरक्षात्मक तरीके से खेला, दूसरी को मिड विकेट से उठा दिया 6 रन के लिए। वीरेंद्र सहवाग ने 175 बनाए थे मीरपुर ढाका में 2011 ओपनिंग वर्ल्ड कप में, तब मैं कमेंट्री कर रहा था। इंदौर में जब उन्होंने 219 बनाए तब मैं कमेंट्री कर रहा था। वीरेंद्र सहवाग के लिए ताली हो रही है। मैं कहता हूं कि रेडियो की जो कमेंट्री है, जो चैलेंजेस हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, हॉकी कमेंट्री से मैंने स्टार्ट किया, 7-8 डिसिप्लिन में करता हूं। चैलेंजेस बहुत है। हम लोग जो कमेंट्री करते हैं, रेडियो की कमेंट्री की बात करूंगा, सारी प्लानिंग की बात हो चुकी है। हम लोग लिसनर के दिमाग में शब्द चित्र बनाते हैं। वो अपने घर पे बैठा है, दुकान पे है, गाड़ी में है, हम शब्द चित्र से उसको ये एहसास दिलाते हैं कि आप इस समय से देख रहे हैं। उसको ये पता लगना चाहिए कमेंट्री सुनते हो कि यस, मुझे ऐसा लग रहा है ये खेल मेरे सामने हो रहा है। ये कमेंट्री की विधा है। ऑल इंडिया रेडियो बाकी सबके लिए कमेंट्री करता है एज ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर, पर नेत्रहीनों के लिए, दिव्यांग जो स्टेडियम नहीं जा सकते, हम उनके लिए कमेंट्री करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको तैयारी होनी चाहिए आपके साथ। अगर आप तैयारी करके नहीं गए तो आप, जैसा सर ने कहा था कि 2 घंटे ब्रेक हो गया, आप एक्सपोज हो जाएंगे। अगर आप कमेंटेटर बनना चाहते हैं, आप अखबार को, उर्दू अखबार की तरह पढ़ना शुरू कीजिए, हिंदी अखबार, अंग्रेजी अखबार को पीछे से पहला पन्ना खोलिए, आगे से मत खोलिए। आप स्पोर्ट्स पन्ने को आप पूरा पढ़ जाइए, आप अपडेट होते रहिए, आप कमेंटेटर बन सकते हैं। जब तक आपके पास होमवर्क नहीं होगा, आप रोज की सूचनाओं से अपडेटेड नहीं होंगे। और इसके लिए ऑल इंडिया रेडियो स्पोर्ट्स स्कैन देता है डेली। आप दिन भर अगर आप कुछ नहीं करते, आप FM गोल्ड के ऊपर अगर 15 मिनट के लिए स्पोर्ट्स स्कैन सुन ले, तो आपको दिन भर की सारी खबरें मिल जाती हैं। जहां जहां कोई नहीं पहुंच सकता, सीमा पर हमारे जो जवान है वो कमेंट्री सुनते हैं। 99 के वर्ल्ड कप में मैं इंग्लैंड में कमेंट्री कर रहा था, पाकिस्तान इंडिया का मैच था। तो ये बाद में एक विज्ञप्ति आई थी, किसी ने, आर्मी वाले ने कहा कि बॉर्डर के ऊपर तनाव बहुत ज्यादा था कारगिल वार का, और जब इधर से चौका लगता था तो इधर से हम 1 घोड़ा छोड़ते थे, जब छक्का लगता था 2 घोड़े छोड़ते थे, जब हमारा विकेट गिरता था उधर से घोड़ा आता था। तो दोनों तरफ से उन्होंने, पाकिस्तान वाले भी सुन रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो वाले भी सुन रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो की जो सत्यता है या उसकी विश्वास है कमेंट्री का, इंटरेस्टिंग कुछ आना चाहिए। जहां बोर हो रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, टुक 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 चल रही है, इनिंग बचाने उस वक्त आपके पास इंटरेस्टिंग फैक्ट होने चाहिए। मैदान पे अगर आपने कुछ ऐसा उठाया है, उसको आप देख के बता सकते हैं। मैक्सिकन वेव बनती है, जो दर्शक उठते बैठते दैट इज कॉल्ड मैक्सिकन वेव। आप उस मैदान के बारे में बताइए, उस स्टेडियम के बारे में बताइए, वहां के क्लाइमेट के बारे में बताइए, वहां की चीजों के बारे में बताइए। श्रीलंका के हर खिलाड़ी का नाम 6 नंबर का है, 6 लंबा नाम।
तो आपके पास ये भी अगर आपका होमवर्क है तभी आप कह सकते हैं इस खिलाड़ी को टीएम दिलशान, लेकिन इनका पूरा नाम नहीं है। तो आप भी खातिर कर रखने दिलशान, उसके अलावा बहुत लंबा शाम पड़ जाएगी बताते बताते सभी खिलाड़ियों के साथ ही। सो आपके पास होमवर्क होना चाहिए, मॉड्यूलेशन होना चाहिए, लाइव अपडेट हम देते हैं। जैसे ओलंपिक में, जैसे मैं ग्लासगो में था, हम लोग बीजिंग ओलंपिक में थे, 3 कॉमनवेल्थ गेम्स पास करने के, तो वहाँ लाइव अपडेट भी देता हर घंटे बाद। अगर भूपेंद्र सिंह ने गोल्ड मेडल जीता तो तुरंत अगले जो अपडेट हो उसमें हम हिंदुस्तान को खबर देते हैं कि भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता है। तो 2 मैं छोटे सैंपल आपके सामने, एक हॉकी का और एक क्रिकेट का देता हूँ। हॉकी का भारत और पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा है नेशनल स्टेडियम। नमस्कार, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से कुलविंदर सिंह कंग बोल रहा हूँ। आज यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान श्रृंखला का ये दूसरा हॉकी मैच चल रहा है और मध्यांतर के बाद जबकि 13 मिनट का खेल हो चुका है, भारत की तरफ से आक्रमण बनता हुआ लाइन टच में गेंद को संभाला, सरदार ने ड्रिबल करते खूबसूरत तरीके से 25 गज की लाइन को पार किया, फ्लिक करके मनप्रीत को दिया, मनप्रीत ने संभाला, वापस दिया गुरजन को, गुरजन ने एक बार फिर से मनप्रीत को दिया और मनप्रीत ने निकाल सेंटर किया, लेकिन आज की गेंद को टच नहीं करते थे और गेंद को टच न देते उसी मारे से बाहर चली गई, टच लाइन से बाहर चली गई। एक बहुत अच्छा मौका था, केवल गोलकीपर से बीट करने थे लेकिन ट्रैप नहीं कर पाया सुनील, और भारत के हाथ एक सुनहरा मौका आया, वो बेकार चला गया। दिस इज हॉकी। आप सिर्फ आपने देखना है जस्ट नंबर, आपने खिलाड़ी की पोजीशन बता सकते हैं, राइट इन, राइट आउट, फॉरवर्ड खिलाड़ी, डिफेंस, राइट फुल बैक, लेफ्ट फुल बैक। क्रिकेट में विराट कोहली सामना करते हुए एनबीडी लंबे करके खिलाड़ी डेब्यू किया सेंचुरी टेस्ट मैच, मैंने अभी सेंचुरी किया था वो याद है, बोल देता हूं। सेंचुरी टेस्ट मैच में डेब्यू किया इन्होंने और पवेलियन चोर से अपने ओवर की विकेट लेकर दाएं हाथ ओवर में अच्छी गेंद आपको के बाहर वापस लेकर पहुंच गए विराट कोहली, खूबसूरत तरीके से स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, गेंद आ रही है कवर क्षेत्र में सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए, चौके की मदद से विराट कोहली 39 पर भारत 103 रन की थैंक यू टू मैडम रुक्मणी जी और बाकी उनकी पूरी टीम जिन्होंने हमें संपर्क किया। यूनेस्को सर नहीं समझे हमारी हिंदी लेकिन बहुत हंस रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां और सब लोग मुझे यहाँ बैठे सुन रहे हैं, आप सब लोगों ने मौका दिया और जैसे प्रमोद श्रोता हमें यहाँ पर मिले, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।